नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानि विदेवे दयिताय कृपावधे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः महादुर्जल प्रमाणानुगभक्ति श्री गौर करुणास विग्रह नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे मम भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासदि श्री गौरव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 वो अदरक कहाँ है? नहीं गला मेरा सूख जाता है जल्दी जिंजर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करये दासे ऋणापेक्षायोति न गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करये दासे ऋणापेक्षायोति अरे सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज माने प्रियायन निज माने प्रियायन सकले समान करिते सकते देहनाथ जथा जत सकले समान करिते सकते देहनाथ जथा जत अरे तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध बेहत अपराध बेहत अरे शक्ति बुद्धि आमी अति दे कर्म रे आत्मसात शक्ति बुद्धि आमी अति दे कर्म रे आत्मसात अरे যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই তোমার করুণা সার তোমার করুণা সার আরে করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আরে করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না রাখিব আর
श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद हरे गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरे हरि बलिते न अने भाविनीर गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरे हरि बलिते न अने भाविनीर ও আর কবে তাই চাঁদের করোনা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছবে আর কবে তাই চাঁদের করোনা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছবে আর বিষয় ছাড়িয়া কবে সুধা হবে মন কবে আমহে রব শ্রী বৃন্দাবন বিষয় ছাড়িয়া কবে সুধা হবে মন কবে আমহে রব শ্রী ও রূপার গুণাত পদে হইবে আকুতি কবে আম বুঝব সে যুগল পীড়িতে রূপার গুণাত হইবে আকুতি কবে আম বুঝব সে যুগল আর রূপার গুণাত পদে প্রভু মোর আস প্রার্থনা করে সদা নরোত্তম দাস রূপার গুণাত পদে প্রভু মোর আস রূপার গুণাত পদে প্রভু মোর
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai, jai jai Shri Radhe. Bolo Shri Gurudev ki jai, Gaur Premanande. क्या करना है? थोड़ा हरी कथा बोलता है, आयरन देख लो। Are you tired? Sleep, eh? हैं? कितने बोलेगा? आधा घंटा? हैं? 1 घंटा. How it is talk about us 8. Quarter past 8. हरी कथा राम नाम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyasi Sriman Bhakti Vedanta Silavan Vishnu Maharaj, Bhakti Vedanta Silanani Vishnu Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyasi Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Silavan Vishnu Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis. So today is very super excellent, auspicious day, the Disciples Day of Ramanuja. Mahaprabhu's very near and dearest and Antaraj devotee, that is called Ramanuja. Mahaprabhu always he was staying with Sarup Damodar and Ramanuja. Krishnadas Kaviraj Goswami also explains Sarupir Ganar Rayar Natak Viroher Kale Duhe Rakya Paran. When Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in the same separation mood of Srimati Radhika, Viraha, and that time Sarup Damodar and Rayamananda, they were staying with Lord Chaitanya Mahaprabhu in Gambhira, and they also saved the life year of Lord Chaitanya Mahaprabhu. How? We are saying Sarupir Ganar Rayar Natak. Sarup Damodar, he sang the song of Vidyapati and Chandidas, an ancient Vaishnav Kavi, the Sikh Acharya. That is called Vidyapati and Chandidas. Most of their song, that is called Radha Krishna's, very sweet, amorous pastimes. Such as give an example, Yisai keba sunailo sam naam kanero bhitare diya morome posilo go akulo korilo poran. Chandidas, he sang this song. Srimati Radhika, she told, oh my Sakhi,
when I heard just the name of my beloved Krishna, Sam. So Keba Sulaino Sam Nam, Kanero Bhitar, this name is how very powerful. When these holy names, Sam Nam, Krishna Nam, enter my ears and coming in my heart, then my heart completely melted. So saying, Sahi Keba Sunailo Sam Nam, Kanero Bhitor Dia, Morame Posilogo, Akulo Korilo Pora. Najani Sam Name, Achekoto Madhu. Srimati Radhika Sito, what kinds of sweetness? Madhu. In the name of Sam or Krishna Nam. Just two syllables, two akshar. And Krishna Nam and Sam Nam enter in my ears and come in my heart. So why I am saying, because in the same way, when Sarva Damodar, he sang this song of Vidyapati and Chandidas, then Chaitanya Mahaprabhu's viraha, separation, increase and again, not decrease. And Raya Ramananda, and that time he also recited some verses of Srimad Bhagavatam, especially separation mood of Srimati Radhika, when Krishna left Vrindavan to Mathura. And that time Srimati Radhika, she felt pang of separation from Krishna. And that time Uddhav also came, but Uddhav when came in Vrindavan, he saw Srimati Radhika's transcendental madness. That is called Brahmar Gita, as described in Srimad Bhagavatam. And that time Srimati Radhika she saw one black bee and tried to sit on her lotus feet. Then Srimati Radhika, she completed her madness coming. Dibbonma, the certain man. That time she also told, Madhupa Kitva Bandhu Ma Visrangi. This Brahmar Gita Katha. Hey Madhupa, mane black bee. Why you have to come here? You have to go return back to Mathura. Don't touch my feet. Because that the black bee want to sit on the lotus feet of Srimati Radhika. So when Uddhav came in Vrindavan and saw Srimati Radhika transcendental mandate, Dibba Unmad Dasha. In the same way, sometimes Sarva Damodar, he recited some verses of Srimad Bhagavatam, that is Viraha Katha, or sometimes Raya Ramananda, he recited his own Grantha. What is the Grantha of Raya Ramananda? Do you know? Jagannath Vallabh Natakam. Understand? First just listen the name of Grantha of Raya Ramananda. Jagannath Vallabh Natakam. Very nice, high class Grantha. Viraha Bhava Vidya. So I also told to you, ye Saruper Gana, Rayero Natak, Viraher Kale Due, Rakhoi Paran. That time they also saved Lord Chaitanya Mahaprabhu's life here with these types of song and kirtan and recitation of the sloka of Srimad Bhagavatam. But how they saved the life of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Harikatha. Harikatha is very powerful. Sometimes I also discuss this katha in the Ramayana. Because sometimes you see how viraha, separation, and so how to save the life here of lover and beloved. प्रेमिक प्रेमिका की विरह दशा में एक दूसरे की प्राण कैसे रक्षा होती है, समझ में? How lover and beloved, they also saved their life here. Because our scriptures explain, Jadi hai jo, kabhu na hai byo. If you just meet together, you cannot separate. Or if you separate, you cannot survive yourself. Jadi hai jo, tabi na jiya. Chaitanya. If you separate from your lover or beloved, you cannot survive your life.
you have to give up your body. So just these things also I explain this way. Ramayana, this Katha is explained. Hanuman, he got the message from Sita Devi, from Sri Lanka. When he returned back Lanka, then Ramchandra, and he met with Ramchandra. At that time, Ramchandra, he first asked to Hanuman, "Hey Hanuman, did you really meet with my wife, consort Sita Devi? Is she alive or she left her body?" तुमने सीता देवी के साथ जो मिलावा दर्श देखा, उनके जीवित अवस्था में देखा, उनके शरीर छोड़कर दिया, उस मृत शरीर को देखा। रामचंद्र ने प्रश्न पूछा, अच्छी तरह से पढ़ो रामायण। हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी टोल्ड, "ओ प्रभु, व्हाई डिड यू आस्क दिस थिंग?" सीता देवी, रामचंद्र टोल्ड, "व्हाई आई एम आस्किंग, हैव यू सीन माय कंसोर्ट सीता देवी's body with life or without life? Because my father, he can't to survive separation from me." When Ramchandra exiled, that time Dasharatha Maharaj could not tolerate separation from Ram. Haram, then Dasharatha Maharaj left his body. This is Vatsalya's name. Dasharatha Maharaj, he has love and affection with Ram. What's love and affection? Vatsalya, parental. But Sita Devi's, her relationship with Krishna, that is called conjugal mood. So how possible Sita Devi, she survived her life here with separation from me? Because our scripture explains prem manifested one's heart cannot to separate to each other. यदि प्रेम किसी उत्पन्न हो जाए, यदि है जोग कबू ना है वियोग, प्रेम उत्पन्न हो जाए किसी के हृदय में, अपने प्रेमिक प्रेमिका में प्रेम उत्पन्न हो, तो प्रेम कभी जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे, विरह सहन नहीं कर पाएंगे। इसको अभी तत्व सिद्धांत सुनो, रामायण की कथा तो बहुत दूर की बात है, अभी रामायण की कथा सुन लो तो आप उसके समझ में आएगा। इसलिए रामचंद्र पूछ रहे हैं, रामचंद्र फॉर दिस रिगार्ड रामचंद्र, ही आस्क्ड टू हनुमान, सीता देवी शी इज माय कंसोर्ट, तो हाउ पॉसिबल सीता देवी शी सर्वाइव हर लाइफ हियर सेपरेशन फ्रॉम मी? सीता देवी कैसे अपने लाइफ जीवन को कैसे वो धारण करके मुझसे विरह होते हुए विच्छेद होते है, ये कैसे संभव? दशरथ महाराज कैन नॉट टॉलरेट separation from Ram, Vatsalya, because conjugal mood is higher than Vatsalya. So how possible Sita Devi, she survived her life here, separation from me? So for this regard, Ramchandra, he asked this question to Hanuman, कि तुमने मेरी पत्नी सीता देवी को देखा क्या जीवित अवस्था में और मृत शरीर में देखा? तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मैं आपके चरण शपथ करके मैं बताता हूँ, संदेह मत करो मेरे प्रति, मैं सीता देवी के साक्षात रूप में दर्शन किया। हनुमान जी वेरी हम्बल told to Lord Ramchandra, "Oh my Lord Ram, I am taking the oath vow." क्या? What vow? I saw Sita Devi, she is alive, and I talked with her direct. That time Ramchandra, Hanuman, he also told, "Prabhu, you are saying this is true. The lover and beloved, when they separate to each other, cannot survive their life here. This is true. But Sita Devi, in this way, in case Sita Devi, she wants to give up her body, life here, because she cannot tolerate separation from me. But your name is very powerful. भगवत नाम की महिमा हनुमान जी
वर्णन करना। नाम पहारो दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट। तुलसीदास जी लिख रहे, नाम पहारो दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहूं जो बाट। हनुमान जी क्या बोल रहे, पहले हिंदी में सुनो, आनंद आएगा। नाम पहारो, बोले प्रभु आपके नाम की महिमा क्या वर्णन करूं है? आपके जो दो अक्षर तो नाम जो है, क्या नाम है? र और म, राम राम। ये दो अक्षर नाम में ना जाने कितने शक्ति है। नाम पहारो, आपके नाम क्या है? ये दो अक्षर जो तो नाम है। मानो ये कपाट, कपाट माने ध्यान तुम्हारा कपाट। कपाट शब्द के अर्थ होता है दरवाजा लगा हुआ है? नाम अपहार दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद जंत्रित। बोले फिर आपकी तो ध्यान ही कर रहे, ये ध्यान क्या हो गया? खिड़की माने वो लग गया ना, दरवाजा है, ये ध्यान हो गया। और निज पद लोचन जंत्रित, और सीता देवी के आंख जो है कभी जब खोलती भी है तो आपके चरण में ऐसे लगे हुए, जंत्री शब्द अर्थात जन ताला लगा हुआ है। जैसे एक तो कपाट लगा दिया, खिड़की लगा दी है, और साथ ही साथ क्या कर लगा दी? ताला लगा दी, ताली है, अच्छा लॉक। निज पद जंत्रित प्राण कहूं जाऊं बाट। बोले आप कहां से, उनके प्राण कहां से निकले है? बोले भगवान की, रामचंद्र की राम नाम की इतनी महिमा हनुमान जी बता जा रही, गजब की बात, क्या बताऊं है? तुलसीदास की रामचंद्र मानस पढ़ो ना, आनंद में डूब जाओगे। इसे कहते हैं नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद जंत्रित लोचन प्राण कहीं जाऊं बाट। बाट माने रास्ता, जाने की रास्ता यही नहीं है। बोले सीता जी के प्राण वायु तो उनके हृदय में है? और राम नाम जप कर रहे, ये राम नाम दो अक्षर है, र और म। ये दोनों क्या हो गया? बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, र और म सिक्योरिटी गार्ड माने पहरेदार, पहरेदार कहते ना है, सिक्योरिटी गार्ड बैठे बड़े। और फिर नाम पहारो निज निज ध्यान तुम्हारा, ध्यान क्या हो गया? ये खिड़की माने कवाट माने डोर लगा देते है, ध्यान। और क्या? निज पद लोचन जंत्रित। बड़े आपकी चरण कमल में इतना एक निश्चय लिखा है जैसे ताली लगा हुआ, ताले लग गया तो प्राण कहां से निकलेगा? इसलिए तुलसीदास करे प्राण कहीं जो बाट। बाट माने रास्ता, जाने की रास्ता, प्राण वायु निकलने की रास्ता ही है ही नहीं है? एक सिक्योरिटी गार्ड, फिर दरवाजा, फिर दरवाजा में क्या लगा है? ताला लगा हुआ है, तो प्राण कहां से निकले? बोले भगवान, बोले प्रभु आपकी नाम की महिमा अपार, जिसके नाम की महिमा कहना है इस श्लोक का को बोलना पड़ेगा। नाम पहारो दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, निज पद लोचन जंत्रित प्राण कहीं जाऊं बाट है। अर्थात सीता देवी आपकी इतने प्रेम करती है
आपके अलावा और कोई नाम नहीं जप करती है, आपके ध्यान छोड़ करके किसी की ध्यान नहीं होती है, और उनकी दृष्टि कभी भी आंख खोले है तो आपकी ही चरण कमल के जो है वो देखते रहते, वहां साक्षात उनके दर्शन होती है। इतने सुंदर कथा बोलती है। मेरे कहने की तात्पर्य है, जब साधक विरह दशा में डूब जाता है, विरह दशा में क्या होता है, एक मिलन के चिंतन होता है, ऊपर से विरह विच्छेद, और अंतर हृदय में अपने प्रियजन के चिंतन होता है। बोले कृष्ण लीला क्या सुनोगे, रामलीला कथा सुनो ना, आनंद आ जाए। राम सीता देवी वाल्मीकि आश्रम में गई, जनक नंदिनी से, जिनकी चरण कमल जो है कोमल से भी कोमल, अत्यंत जो है नरम, जीवन में कभी धूल पर जो है पैर नहीं रखा है, जिनकी चरण कमल की जो है लक्ष्मी आदि बड़े बड़े जन जिनकी चरण कमल की पूजा करती रहती है, जनक नंदिनी सीता देवी आज क्या कर रही है, वाल्मीकि आश्रम में दो पुत्र के पाल रही है, पेड़ के नीचे बैठी है, क्या ठंडी और गर्मी सहन कर रही है। जीवन में बचपन से लेकर के जीवन तक जीवन में कभी देखा ही नहीं है ये जंगल कैसे है? आज कहां पर बैठी है, पेड़ के नीचे बैठी है, और दो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बाल जो बच्चा के जो है लब उसको कैसे पाल रही है। दोनों बच्चे, एक बच्चा होते तो कोई भी हो जाता है, दो बच्चे जो नन्हे मुन्ने दोनों बच्चा को कैसे पाल रही है? जंगल में अपने आप लकड़ी इकट्ठा करके लाती है, सीता देवी दो बच्चा को कांध में लेकर के जंगल में जाकर के लकड़ी चुन करके लेकर के आ रही है, चूल्हा जलाने के लिए। पहले पहले आश्रम में तो ऐसे ही होता था, गैस फैस की कोई व्यवस्था नहीं, जाओ जंगल में जाओ, लकड़ी चुन करके लाओ, लकड़ी। सीता देवी स्वयं आश्रम जीवन के कैसे व्यतीत कर रही है बता रहे थे वाल्मीकि ऋषि, रामचरित मानस में भी, क्या बोले वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, जनक नंदिनी सीता देवी दोनों बच्चे के जो है पाल रही है, स्वयं जो है कुट रही है, क्या गेहूं के जो है वो चक्की चला के घुमा रही है, कर सकते हो आप। स्वयं सीता देवी कुएं से पानी भर रही है। देखो जिनकी घर में बड़े बड़े देवता लोग काम करने के लिए तरसते रहते हैं, ये हजारों दास दस जिसके पड़े हुए हैं। आज भी जनक नंदिनी सीता देवी जंगल में क्या कर रही है, स्वयं चक्की चला रही है, गेहूं की पीस रही है। अच्छा उस समय तो मशीन नहीं था, ये आटा आ जाए, गेहूं की जो है स्वयं पीस रही है, और फिर तवे में जो है रोटी बना रही है, बना रही है अपने हाथ से, और दोनों नन्हे मुन्ने बच्चा को खिलाए। चलो इसी तो करते रहे। सीता देवी एक सरोवर के किनारे में बैठी, और बैठे बैठे रामचंद्र को अपने पति रामचंद्र के स्मरण कर रहे, और कैसे विरह में क्या हो रहा है, भाव में डूब गए राम सीता देवी। बस कैसे है विवाह की समझ है, कैसे रामचंद्र के साथ मिलन हुई, वो कथा स्मरण हुई है, किस प्रकार मिलन हुई है। सीता जी के विवाह के समय अपने सखियों के साथ परिवेष्टित होकर के है, और वो वाटिका में गए फूल चुनने के लिए, और ठीक उसी समय विश्वामित्र के आदेश के अनुसार रामचंद्र भी उसी वाटिका में गए, बगीचा में गए है फूल चुनने के लिए। बस एक दूसरे के मिलन होने लगे, आंखों के आंसू के द्वारा, आंखों के द्वारा दोनों के मिलन हुए। और फिर इसके बाद जो है फिर हरधनुष भंग हुई है,
हरधनुष भंग की, फिर सीता देवी रामचंद्र के गले में जो है माला डाला। इस लीला को स्मरण करे सीता देवी भाव में डूब गई। कहाँ विरह और कहाँ मिलन की लीला होती है। रामायण में बहुत सुंदर रूप में दिखाई गया। आइए कथा में मेरे कहने की तात्पर्य क्या है। ले चैतन्य महाप्रभु भी गंभीरा में जब रहते थे, गंभीरा में जब रहते चैतन्य महाप्रभु अपने के सोचते थे मैं राधा हूँ, आपको नारे राधा माने। चैतन्य महाप्रभु अपने के सोचते मैं राधा हूँ। आज मेरे प्राण प्रियतम गोविंद मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, विरह में तड़प रहे। और महाप्रभु के वही विरह भाव जान करके स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, विद्यापति, चंडीदास आदि के पदावली के जो है कीर्तन करते, अथवा राय रमानंद अपने स्वरचित नाटक जगन्नाथ वल्लभ नाटक के श्लोक जब कीर्तन करते थे, महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता है। महाप्रभु और भी रोते थे। किंतु उस समय महाप्रभु के सेवक गोविंद महाप्रभु के ये भाव समझ नहीं पाते थे। गोविंद आकर के कहते थे सर्वदाम राय में, तुम क्यों लोग आते हो, तुम लोग महाप्रभु के पास काल से मत आना, तुम लोग आते हो महाप्रभु के संतरा देने के लिए कि विरह बढ़ाने के लिए। तुम लोग क्या क्या बोलते हो महाप्रभु के सामने, और महाप्रभु और भी रोते हैं। किंतु विरह में जो रोना उसमें इतने आनंद है, वो गोविंद के बारे में पता नहीं है। ये विरह में क्या आनंद होता है। जैसे कहते हैं तब तो इच्छु चर्बन जोइछे छरण न जा, तपे भी गन्ना खाई कभी, एक शुगर केन। आज हम लोग गए थे ना, शुगर केन को दिखाए, शुगर केन गन्ना, उस गन्ने के यदि आग में तपाओ तब जाएगा है, और उसके रस इतने गर्म होता है, उसके चुपाने से आपके जिह्वा जो है जलेगा, किंतु इतने मिठास होता है छोड़ने की इच्छा नहीं है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण प्रेम की ऐसे अद्भुत है अनुभूति है। ये ऊपरे विषवद जला, अंतरे अमृतमय आनंद। ऊपर से जो है विश्व की भांति जाला होता है, और अंतर हृदय में अमृत की भांति आनंद होता है। इसका तत्व इच्छु चर्बन लीजिए क्षरण हो जाए। कृष्ण प्रेमान यही तो अद्भुत लक्षण। ये कृष्ण प्रेम की लक्षण इतने होता है, बाहर में रोते हैं किंतु अंतर हृदय में आनंद होता है। किंतु इस रस माधुर्य की जो महाप्रभु के जो सेवक है, जो उनके पैर दबाना, उनके लिए रस्सी बनाना, गोविंद इसको नहीं समझ नहीं पाए। इसलिए गोविंद कहते थे ये सर्व दामोदर आए में तुम लोग महाप्रभु के पास क्यों आते हो, महाप्रभु के तुम कौन सा कथा सुनाते हो जिससे महाप्रभु के रोना बंद नहीं होता है, और महाप्रभु और भी रोता है। एक व्यक्ति के रुलाना ठीक है कि नहीं? नहीं। तुम लोग आकर क्यों रुलाते क्यों है? किंतु ये रोने में जो आनंद है वो आनंद व्यक्त करना संभव नहीं। अर्थात विरह में, विच्छेद में ये मिलन की ऐसे एक स्वरूप अनुभूति होता है, वो केवल प्रेमिक जन ही जानते हैं। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है ना, वो क्या समझे है? हृदय में जिसके प्रेम की अनुभूति हो जाता है, वो प्रेम की ऐसे क्रिया होता है जिसके वर्णन करना संभव नहीं। ये कौन जानते हैं? महाप्रभु के हृदय के भाव कौन जाने वाले हैं? ये स्वरूप दामोदर राय रमानंद, राय रमानंद कहते हैं ना, राय रमानंद महाप्रभु के हृदय को जानते थे। इसलिए महाप्रभु के भावों के अनुसार स्वरूप दामोदर राय रमानंद ये समस्त विरह की कथा, विशेषकर विद्यापति, चंडीदास की पदावली अथवा जयदेव की कथा सुनाते। जयदेव की क्या सुनाया था? गीत गोविंद। महाप्रभु विशेष करके जो कभी कोई स्वयं भी कीर्तन करते थे। विरह काले संग महाप्रभु एक एक श्लोक के उच्चारण करके नित्य गीत करते थे। कभी गोपी गीत, कभी भ्रमर गीत,
इस गीतों की जो है महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते थे और उस प्रेम रस आस्वादन स्वरूप दामोदर रायरमंद करते थे। सब लोग के संभव नहीं था। महाप्रभु के 3.5 में 3.5 जन होता है, महाप्रभु प्रिय जन होता है। एक स्वरूप दामोदर, रायरमंद, सिखी माइती और माधव देवी के आधी बोलती है। माधवी देवी ना, उनको आधा का, ये 3.5 जन। महाप्रभु के जो परिकर में ये देखा जाए कितने लोग थे, बड़े 3.5% नॉट है आधा माधवी देवी का ना है, माधवी देवी है, फिर सिखी माइती, स्वरूप दामोदर, रायरमानंद और माधवी देवी। महाप्रभु जब विरह दशा में होते थे, गंभीर में रहते थे, बस इसी कथा को ये लोग सब कीर्तन करते थे और प्रेम रस आस्वादन करते। तो रायरमानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मैंने आज प्रातः काल में कहा था, रायरमानंद कौन था? ये विशाखा देवी है। रायरमानंद विशाखा, रायरमानंद के चरित्र के वर्णन करते हुए हमारे कृष्णदास कविराज भी चरित्र के वर्णन कर रहे, कैसे उत्तम भागवत, किसी प्रकार प्राकृत वस्तु के प्रति द्वारा किसी को उसके चित्त क्षुब्ध नहीं होता था। His mind will never stimulated or hesitate with any kinds of material activities. जो और कोई वस्तु देख कर कुछ नहीं होता है। बड़े बद्ध जीव में तो चित्त विकार हो जाए। स्वयं महाप्रभु भी कहे, महाप्रभु दैन्य करके भी कहने लगे, ये मुझे भी जो और वस्तु देखने से चित्त विकार हो जाता है, किंतु रायरमानंद की विकार नहीं है। ऐसे इस कथा को कैसे बोल रहे हैं? एक ब्रह्मचारी था, उसके नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रद्युम्न मिश्र। ब्राह्मण था, वो ब्रह्मचारी ब्राह्मण था। वो एक दिन जाकर के महाप्रभु के बोले, प्रभु आपके मुखारविंद से मैं हरिकथा सुनना चाहता हूँ, बिकॉज आप सन्यासी और ब्राह्मण। महाप्रभु जान गया उनके हृदय की बात, ये अहंकार रखते हैं, मैं ब्रह्मचारी भाई ब्रह्मचारी हूँ और ब्राह्मण। महाप्रभु दैन्य करके बोले, अहो हरिकथा सुनने में तुम्हारा इतना उत्कंठ हो गया। बोले हरिकथा में जिसको रुचि हो जाता है वही महाभाग्यवान। हु इज ग्रेट फॉर्चून? बोले जिसके हरिकथा सुनने में और रुचि हो जाए। जीवन की देख कर हरिकथा में किसको रुचि हो जाए? हरिकथा हरिनाम देखिए ना, नाम में रुचि हो, कथा में रुचि हो। महाप्रभु कहने लगे, सही भाग्यवान, इज ग्रेट फॉर्चून वन हु हैज टेस्ट टू लिसन हरिकथा। महाप्रभु दैन्य करके कहने, महाप्रभु वेरी हम्बल, ही टोल्ड, I don't know हरिकथा। Who knows? कौन जानते हैं हरिकथा? बोले रायरमानंद। महाप्रभु told you go to Rayamananda. Rayamananda he will speak harikatha. But Pradyumna Mishra, he is proud. He thinks, oh, Rayamananda is not a Brahmana. I am Brahman and Brahmachari. So why would I leave you? Listen harikatha from low caste. But Mahaprabhu is very, Mahaprabhu told, Mahaprabhu is thinking, no, I have to destroy his pride from his heart. उसके गर्व को चूर्ण विचूर्ण करा, ये मेरा कर्म। ये जानते नहीं है रायरमानंद कौन कैसे महाभागवत है। Mahaprabhu told, you have to go listen harikatha from Rayamananda. Ami jato janani na jani jane Rayamananda. Mahaprabhu very humble told, I don't know more harikatha, but Rayamananda, he knows everything. He should go. According to the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, Pradyumna Mishra, he came in the house of Rayamananda. That time was midday. That time Pradyumna Mishra, Brahmachari, he asked
the servant of Rai Ramananda. You heard is Rai Ramananda. That the servant of Rai Ramananda, he told, then Rai Ramananda, he is performing a drama of his own book. What is the drama book name? Jagannath Vallabh Natakam. याद रखो, कम से कम तो ग्रंथों की याद रखो, नाम याद रखो. जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, बहुत उच्च स्तर का, बहुत सुंदर ग्रंथ है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. इंग्लिश में नहीं है. इंग्लिश में तो है, मैंने देखा था. ये अंग्रेज लोग सब इसका सब ट्रांसलेट करते हैं. जगन्नाथ वल्लभ नाटकम बहुत सुंदर उच्च कोटि का ग्रंथ है. इतना सुंदर ग्रंथ है ना, आनंद आ गया, रस ग्रंथ है. So the servant of Rai Ramananda, he told Rai Ramananda, he is practicing his own grantha, drama grantha with the young girls. Young girls. छोटे छोटे युवती लड़कियों के साथ कोई एकांत स्थान में ये अपने ग्रंथ की जो है ड्रामा करे. इस कथा को सुन करके पद्म ऋषि के मन में थोड़ा संशय हो. Padmanabh Mishra's mind become very disturbed. Because our Shastra is saying, how possible? Rai Ramananda, he is performing drama with the young girls in solitary place. Matra, Sahasra, Dvita, Navi, Vivakstana, Supasit, Palavanu Indragamu, Viddam, Viddam, Upi, Sankarsayate. Our scripture is saying, you should not stay alone with your mother, with your wife, with your daughter, or with your sister. Even those who are sober person, their mind will be disturbed. But Rai Ramananda, he is performing a drama with the young girls. For this, Padmanabh Mishra's mind little bit disturbed. Then he thinking, how possible I will listen Harikatha from Rai Ramananda? Mind disturbed. Then about midday, Rai Ramananda, he came, returned back. And that time Padmanabh Mishra's mind very disturbed. Then Rai Ramananda also noticed. And did not say anything. Then Padmanabh Mishra, he returned back his house. Did not listen to Harikatha. Then Mahaprabhu asked Padmanabh Mishra, hey, did you listen to Harikatha from the Lord Rai Ramananda? That time Padmanabh Mishra told no. Mahaprabhu Sarva Antarjami, Mahaprabhu knows the heart of Rai Ramananda, knows the heart of Padmanabh Mishra. Oh, he has some proud, he has some doubt with Rai Ramananda. Rai Ramananda is Uttam Mahabhagavat. Guchhanga Sparsantar Nahai Vikar. Mahaprabhu again told, okay, next day, Mahaprabhu told, hey Padmanabh, now we go again in the house of Rai Ramananda and listen to Harikatha. According to the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Padmanabh Mishra, again he came in the house of Rai Ramananda. Then Rai Ramananda he asked, why have you come here? That time Padmanabh Mishra told, oh Lord Chaitanya Mahaprabhu sent me to listen Harikatha from your lotus lips. Then Rai Ramananda heart melted, oh Mahaprabhu sent? Listen Harikatha? Okay, sit down. Rai Ramananda he spoke Harikatha. You already know Rai Ramananda Harikatha is what Harikatha? Not low level Katha. Rai Ramananda's Harikatha always is what? High class Harikatha. Always Gopis Katha. Even morning I told. Rai Ramananda always spoke Harikatha about Gopis Rashla Katha, Brahmar Geet, Geet Govinda, this Katha. Understand? Jadi Hari Smarane, Sarasangamanam, Jadi Kalasa Vilasa Kutu Haram, Madhura Kumaro Kam to Padavali Muslim Padaja, Deva Saraswati. They will say written in this verse, in the invocation slope of Gita Govindam. I trust God. Jadi Hari Smarane Sarasang Manam. If you want to remembrance
to Krishna, then you have to listen Git Govinda. Jadi Hari Sarasa Maram. Jadi Vilasa Kulosa Kutuhalam. If you have some inquisitive mood, to how to merge in that divine love of Radha and Krishna, you have to listen Radha and Git Govinda's Katha. Jadi Hari Smarane Sarasang Mano, Jadi Vilasa Kalasa Kutuhalam, Madhura Komala Kanta Padavali, Sunu Sada Joy Deva Saraswati. Jayadeva Gosai. और इस सुनो गीत गोविंद की कथा सुनकर और कथा कोई आपका अच्छा ही नहीं लगेगा, थोड़ा सा रुचि हो जाए ना और कोई कथा अच्छा ही नहीं लगेगा. If you have little bit taste, then you don't want to listen others. Payam Singh, because Rai Ramananda, when he spoke any Hari Katha, his Hari Katha start beginning here from Gopi's Katha. Gopi Rashla Parakya Katha, this Katha, not others. His Katha is not low level Katha. Very high. Very high level Katha. Rasika. Very powerful and high level. I am saying because Padma Mishra, he told Chaitanya Mahaprabhu, send me, listen Hari Katha from you. Then Radharani heart melted. Oh, Mahaprabhu sent you. Then Radharani nicely glorified about Gopi's amorous pastimes. Prem Lila Katha, Raho Keli Lila Katha, many pastimes. And he noticed, when Radharani spoke Hari Katha, his heart melted, all kinds of ecstatic mood manifested in his heart. Padma Mishra, when he noticed what kinds of Hari Katha he is speaking, what kinds of stimulation, uddipan, symptoms in his heart. Then he told, oh, I committed offense to the Spirit. First I was thinking you are an ordinary person, but you are Uttam Mahabhagavad. Because I told Uttam Mahabhagavad, actually not so easy to understand. Stavar Jangam dekhe na dekhe tar murti, jaha jaha netra bade ishta devi spurti, ban dekhi brahmai, e vrindavan, jaha nadi dekhai, manoi kalindi, mahapreme, basi daika. Uttam Bhagavad ki symptom kya hai? Sarvabhutesu japasset, Bhagavad Bhavat, Uttam Sa Uttam Bhagavad. Srimad Bhagavatam gives evidence. Who is high class, exalted, elevated devotee of Krishna? This symptom is Sarvabhutesu japasset. He looks everywhere his Istadeva. And all the living entities serve his Istadev according to his own mood. And all the living entities resides with Krishna. Sarva Bhutesu Japasa. Bhagavad Bhavanatma. Bhagavad Bhavatasa Uttama Bhagavad. This is a symptom of Uttama Bhagavad. Evam Brata Sapyo Nama Kritta. Tathangapane Jarmani Karmani Jani Chaloke. Namani Gitani Tadarthakani Bilojja. Srimad Bhagavad gives evidence. Srimad Bhagavad gives evidence. कृष्ण की लीला कथा स्मरण करके कभी डूब जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है. प्रथंग पाने जन्मानी कर्मानी जानी चलो. ये गोविंद के इतने सुंदर जन्म कर्म आदि दिव्य अलौकिक लीला कथा को श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके पागल के भांति कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं. इसलिए कहते हैं जन्मानी कर्मानी जानी चलो के नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत नित्यते लोकवाज्य. गायन उन्मादवत, उन्माद माने मैड पर्सन है. प्रेमिक भक्त की बाहर से ना देखना बहुत संभव नहीं होता. कभी कभी रसखान की कथा भी बता देता हूँ. रसखान पान के दुकान में आए और वहीं पर ठाकुर जी को देखा. पान के दुकान में छोटा बाल गोपाल के रखा, देखा, देख करके कहने लगे
दुकानदार के बोले तुम्हारे ठाकुर तो सुंदर है और ठाकुर के नन्हे मुन्ने सुंदर पैर है, उसके चप्पल जूता नहीं है, यू हैव नाइस डेटीज, ब्यूटीफुल गोपाल है, स्मॉल बेबी गोपाल, but Gopal has no shoes. Hey, why not put the shoes the feet of Gopal? Then Panwala, he told, hey pagal. Eh? Then Raskan, he told, okay, I can bring him the shoes, small shoes for you, Thakur. Then Panwala, okay, now, ले आओ. नहीं सचमुच वो रसखान छोटे छोटे जूती को लेकर गए हैं, बोले पहना धोए इधर, बोले जा, बोले ठाकुर जी कहाँ है, जा वृंदावन चले जाते ठाकुर जी मिल जाए हैं, चलने लगे वृंदावन। चलते आप वृंदावन पहुंचे, लोगों के पूछने लगे भाई यहाँ पर ठाकुर जी कहाँ है। लोगों ने पूछा रसखान को, बोले कौन सा ठाकुर जी है, बोले वृंदावन में तो सब जगह ठाकुर है, वृंदावन में सब जगह मंदिर है। वृंदावन, इफ यू गो वृंदावन, एवरी हाउस इज द टेम्पल है। इफ यू गो एवरी 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर्स, यू कैन सी एवरी हाउस इज टेम्पल इज देयर। तो कौन सा मंदिर में जाना है? और हाँ, ये तो बात है। तो किसी ने कहा, अच्छा वृंदावन में बहुत, बोले श्याम सुंदर मंदिर है। क्या मंदिर है? श्याम। तो उन्होंने कहा श्याम मंदिर में जाना है। तो किसी के पूछा, बोले यहाँ पर श्याम सुंदर मंदिर कहाँ है? किसी ने कहा ये निकट में जो बड़ा मंदिर दिखाई पड़ रहा है ना, ये श्याम सुंदर मंदिर है। चल पड़े, जूता को लेकर के चल रहा है, छोटा छोटा जूता है ना, नन्हे मुन्ने बच्चे के जो जूते होते हैं, आपके बेटी के जूता इतना छोटा है ना, ऐसे जूता के लिए। ठाकुर जी भी कम नहीं है, बांके बिहारी है नहीं, वो भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठाकुर जी एक साधारण ब्रजवासी के रूप धारण करके आ गए। उनको देख करके रसखान भी क्या पूछने लगे, अच्छा यहाँ पर बताओ ये श्याम सुंदर मंदिर कहाँ है? ठाकुर जी ने कहा हाँ ये मंदिर है। बोले तुम कौन सा ठाकुर, तुम्हारे ठाकुर के दर्शन कर, बताओ तुम कौन से हैं? तुम जो ठाकुर के दर्शन करना चाहते हो वो ठाकुर जी कुछ तो बर्तन रूप वर्णन करो। तो उससे रसखान क्या बोल रहे, बोले नैन में कजरा है, बोले आंखों में काजल लगे हुए है, शीश पर जो है इतने सुंदर घुंघराले वाले बाल है, और बांसुरी हाथ में लेकर के रहते हैं। इतने हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर है। ये भी नहीं है, इतने सुंदर मंद मुस्कान जो है, वेरी नाइस ब्यूटीफुल स्माइलिंग लिप्स, इतने सुंदर मंद मुस्कान जो है भाई बखाइल कर देते हैं। बड़े इंद्रिय सुंदर उनके मंद मुस्कान जो होता है, एक बार दर्शन कर लेते हैं, उसके मंद मुस्कान को उनके चित्त के कैसे कर देते हैं, घायल कर देते हैं। जैसे वैद हिरण के जैसे तीर दे करके घायल कर देते हैं और हिरण छपड़ाते रहते हैं। तो उसी प्रकार वही जो श्याम सुंदर इतने सुंदर उनके मंद मुस्कान जो है बड़े सबके हृदय को घायल कर देते। और उनके हाथ में बंसी तो क्या बताऊं, बड़े बंसी की तरफ तान छोड़ देते हैं ना, घर में कोई रह नहीं पाते है। बड़े बंसी ध्वनि की इतना ताकत है। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो है, निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रहे हैं, जब कृष्ण जब बंसी बजाते हैं और बंसी ध्वनि सुन करके समस्त ब्रज गोपियाँ अपने अपने गृह कार्य आदि सब कुछ छोड़ करके बस दौड़ना शुरू कर देते हैं। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, आज उन्होंने उत्तम अलक्षित ब्रजस्त्री है। बोले गोपियाँ इतने पागल हो जाती थी बंसी ध्वनि सुन करके, बस अपने अपने गृह कर्म छोड़ के दौड़ना शुरू कर दी।
है? एक दूसरे के साथ चल रही है, कोई किसी को देख नहीं पा रहे, सब सोच रही है ये कृष्ण केवल ओनली ही इज कॉलिंग टू मी बिकॉज द साउंड ऑफ द फ्रूट ऑफ गोविंद व्हाट इज साइंग दैट गोपीज नेम and Krishna plays the flute clean and Bij mantra. Krishna he plays the flute with the Bij mantra. What the Bij mantra? Clean and kalam jago bam disa manu. हम लोग के गायत्री मंत्र में क्या है? क्लीम है ना, क्लीम कृष्णा है, क्लीम काम है, क्लीम कल ई म क्लीम। बोले इस बीज मंत्र की इतने ताकत है, गोपियां सब गोपियां सोचने लगी ये कृष्ण केवल मेरे ही नाम लेकर पुकार रहे हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मदिया ईश्वरी नाम राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मदिया ईश्वरी नाम सुनिया चमकी उठिबे केमने राखिब प्राण। मैं भक्ति विनोद ठाकुर इस बांग्ला कीर्तन में करे, बोले कृष्ण जब बंसी बजाते हैं बंसी में क्या ध्वनि, बोले क्लीम, वो क्या है क्या क्लीम, बोले राधे राधे बोली, राधे राधे राधा नाम है, बोले राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मोदिया ईश्वरी नाम चमकी उठिबे केमने राखिब प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुममय तरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत ताहि कुंज सत सत। देखना है चिंतामणिमय राधा कुंड इस श्लोक पढ़ लीजिए। मेरे कहने की तात्पर्य क्या है, बोले गोविंद के वंशी ध्वनि में इतने ताकत होता है। रसकान भी उसी प्रकार भाव पुकारे हैं, रसकान करे, बोले गोविंद की मुंद मुस्कान में इतने ताकत है। बोले वंशी ध्वनि तो केवल ध्वनि प्रवेश करने से है वो तो दौड़ता है, किंतु गोविंद के मंद मुस्कान देखने से सब घायल हो जाता है, घायल कर देता है उनकी मंद मुस्कान है। कह दूत है ठिकाना कहाँ है, श्याम सुंदर तेरे ठिकाना कहाँ है, मुझे तेरे ठिकाना बता दो बस मैं पहुंच जाऊंगा। श्याम सुंदर तुम कहाँ रहते हो, तेरे ठिकाना मुझे बता दो। स्वयं कृष्ण ब्रजवासी के रूप में आ गए और पूछने लगे ये तस्खान बताओ तुम जिसके खोजने के जा रही हो उनको रूप क्या है, क्या रूप बताए, भले नयन में कजरा, क्या बोला, नयन में कजरा, कजरा माने काजल, ब्रजवासी में कजरा, नयन में कजरा, बोले आंख में इतने सुंदर काजल लगे हुए है, बाल कैसे हैं, सिर के बाल कैसे हैं, घुंघराल वाले बाल, इतने सुंदर रूप में सजा हुआ है? और क्या है, बोले हाथ में बंसी रखते हैं। और तीसरी चौथा क्या है, बोले उनकी मंद मुस्कान सबको घायल कर देती है। आहा ठाकुर स्वयं कृष्ण रसखान की अपने मधुर आवाज सुन करके कहने हाँ हाँ निकट में जाओ ये मंदिर है। रसखान आ गए जूते लेकर के आ गए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, इतने समय पुजारी मना कर कहाँ जा रहे। रसखान तो विधर्मी था ना, मुसलमान था, प्रवेश अधिकार नहीं है, कहाँ जाए। रसखान कह रहे अरे मेरे बड़ू जरूरी काम है, स्वयं से मेरा जरूरी काम है, पुजारी मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। पुजारी वाला नहीं नहीं कहाँ से पागल आ गए, अरे ठाकुर से मेरा बात करना है, मेरे जरूरी काम है। पुजारी
तेरी विनती का है, मुझे श्याम सुंदर के से मिलने दो। भला जा जा, पागल है तू, कहां से जूता लेकर के आगे मंदिर में घुस गया? कहां से जूता लेकर के तू मंदिर में घुस गया? जा बाहर। सब रसखान बाहर खड़े रहे सारे रात, मंदिर के नीचे जो है सीढ़ी है ना, खड़े रहे वही जूता को रख कर। रात 1 बज गया, 2 बजे थोड़ा झनक 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 ठाकुर के चरण की जो नुपुर है ना, शब्द होने लगे। रसखान इधर देखे उधर देखे, बोले क्या दिखाई, क्या शब्द क्या हुआ? थोड़ी बाद में देखा ये साक्षात वो श्याम सुंदर मंदिर से बाहर निकल करके। क्योंकि रसखान ने विचार करने लगे, अरे पुजारी तो मुझे तो जाने नहीं दिया, दरवाजा पट बंद कर दिया, किंतु ठाकुर जी कभी नहीं कभी तुम तो नीचे उतर करके आओगे, कब तक तुम दरवाजा बंद करके रहोगे? आना तो पड़ेगा तुम्हें। और इसलिए रसखान वही बास नीचे बैठे हुए थे, मंदिर के नीचे सीढ़ी में बैठे रहे। रात 1 बज गया, 12 बज गए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बज गया। रसखान केवल वही श्याम सुंदर की करनी, तेरे ठिकाना श्याम सुंदर तुम कहाँ रहते हो, तेरे ठिकाना मुझे बता दो, मैं पहुंच जाता। इतने समय झनक 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 नुपुर के ध्वनि होने लगे। और इधर देखे उधर देखा तो अंत में देखा क्या, और जो रूप के वर्णन किया था ना, क्या क्या रूप वर्णन किया था? आंख में काजल लगे, आंख में है, नयन में कजरा है, हाथ में बंसी है, इतने सुंदर मंदन मुस्कान, शीश पर घुंघरू वाले बाल, जिसके ऊपर मयूर पंखा लगे हुए। जो रसखान वर्णन किया ठाकुर जी उसी रूप में आ गए। बस देखते ही रसखान पकड़ गया और पकड़ कर अपने गोद में बैठा और बोले, रसखान कहने लगे, ठाकुर जी तेरे चरण में मैं जूते पहना देना चाहता हूँ। बोले ठाकुर जी, बोले अच्छा पहना। ठाकुर जी अपने छोटे छोटे, ठाकुर जी है अपने पैर को ऐसे कर जूता पहना। बस देखते ही रसखान रो पड़ी। क्यों? देखा ठाकुर जी के चरण में इतने इतने छाला पड़ गया। छाला समझते हो? ब्लिस्टर है, और खून से लथपथ हो रहा है। इतने ठाकुर जी के सुंदर चरण कमल जो है, और उसमें क्या हो गया, लाल लाल, तो ठाकुर के चरण कैसे होता है, लाल आभा होता है, और उसमें ब्लिस्टर छाला पड़ गया और खून से रक्त तक। रसखान रोने लगे और अपने आंसू के द्वारा वो ठाकुर जी के चरण कमल के धोने लगे। अपने वस्त्र के जो है फाड़ करके ठाकुर जी के चरण कमल के जो है सुलहाने लगे। जो कहने लगे, ठाकुर जी तुम्हारे पैर में ऐसे कैसे लगे? बोले ठाकुर जी चले मेरे चल करके आ रहा हूं ना। बोले ये मंदिर से इतने 2 सीढ़ी तो 5 सीढ़ी था, सीढ़ियां तो है। बोले इतने सीढ़ी में चढ़ करके नीचे आने में पैर में ऐसे कैसे हो गया? ठाकुर जी क्या बोले? बोले नहीं नहीं, मैं इस मंदिर से निकल करके नहीं आ रहा हूँ। बोले कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं गोकुल से आ रहा हूँ, नंद गोकुल है, जहाँ पर गोविंद की कृष्ण की बाल लीला हुई, नंद भवन है, नंद गोकुल से मैं आ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले तुमने जो जूता लेकर के आए ना, वही जूता पहनने के लिए मैं खाली पैर में आया, इसलिए खाली पैर से मैं आया। इसलिए चलते चलते रास्ते में कांटे कंकड़ पत्थर लग गए। बस रसखान बोलने लगे, रसखान कहने लगे, ठाकुर जी तुम क्यों मेरे अपने ठिकाना क्यों नहीं बताया मुझे, मैं ही गोकुल पहुंच जाते। ठाकुर जी बोले, रसखान तुमने तो खोजने के लिए मैं वृंदावन आ गया, इसलिए मैं गोकुल से वृंदावन आया तुम्हें दर्शन देने के लिए और तेरे जूता पहनने के लिए, इसलिए खाली पैर में आया। रसखान ने यहीं पर कहने लगे, क्या तुम्हारे माँ तुम्हें जूता नहीं दिया? अरे माँ की तो जूता छोड़ दे, तेरे जूता में जो आनंद है वो आनंद कहाँ मिलेगा मुझे, इसलिए खाली पैर में आया। यदि मैं जूता पहन कर आते तो जूता थोड़ी देते है। बोले मैं जैसे नटखट, तू भी तो भक्त भी तो ऐसे नटखट होता है ना, है
जूता है। तुम कहते अरे ठाकुर जी तुमको क्या जूता, तुम कहते जूता है, इसलिए मुझे खाली पैर आना पड़ा, खाली पैर में आ गया, बिना जूते मैं आ गया तेरे जूते के पहनने के लिए। तुम्हारे हृदय में इतने भावना है मेरी चरण में जूता पहनने की, मैं इसलिए खाली पैर में आ गया। रसखान रोने लगे और अंत में रसखान उसने छोटे छोटे पैर में वो अपना जूता पहना दिया और ठाकुर जी पहन करके नृत्य करने लगे। बोले गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि गोपाल राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी बोले भगवान भक्त की भाव को ग्रहण करते हैं। आज जसत जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी, जिसको जैसे भावना होता है उस भावना के अनुसार भगवान अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, उस भक्त के प्रेम माधुर्य के आस्वादन करते हैं और कराते हैं। बोलो राय रमानंद की। अच्छा अभी हो गया है 9-10 बजे। जय जय श्री राधे। अच्छा चलो ठाकुर जी को भोग लगा कि नहीं? अच्छा प्रसाद लेकर के सो जाओ। ये लोग तो विश्राम नहीं किया है। Did you take rest or not? No. So we have to take rest. Take prasad. You come, then I talk Harikatha 2 hours. So you did not take rest. Now I am speaking Harikatha, you did not take rest. But I am mad, you are mad. Harikatha is rest. Harikatha is rest. Today, You are excellent. We are following your footsteps. today we scheduled rest day and we had More Harikatha. 5 hours Harikatha. Harikatha is rest. As our rest. We're following your In the morning we spoke 1.5 hours, then 2 hours, and now also 1 hour. अच्छा चलो अनिक किया कि नहीं? ये क्या लाया? अरे चारू चंद्रिका ओह श्याम सुंदर। हाँ तुम्हारा देखो दिस इज जिंजर। नो हल्दी हल्दी Yes, saying haldi. This is one fruits, no? Yeah,